A very warm welcome to all my students. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. So thyroid is derived from a Greek word that is thyroides, that means shield shape. Okay, so you can see here it's a shield which is used for protection during the wars. So due to the appearance of thyroid gland of a shield type, that's why it is called thyroid gland. So thyroid gland is a butterfly shaped, just located just inferior to the larynx. You can see here the actual structure of the position of the thyroid gland. So it is located just inferior to the larynx, that is the voice box. You can see that is the C5 region is the larynx. So it is present just below or inferior to the larynx. It is composed of right and left lateral lobes. You can see here. So this is the left and right lateral lobes, and this right and left lobe is connected by a thin connection that is called isthmus, or we call a narrow passage, which is anterior to the trachea. So you can see the trachea behind the isthmus. So this is the trachea. So this trachea, in front of this trachea is present the isthmus, and on the sides there is present the anterior and left and right lobe of the thyroid gland. So thyroid gland is butterfly or H-shaped. The color is brownish red, highly vascular and ductless gland. So it is the largest gland, one of the largest endocrine gland present in a human. So you can see it. The normal mass of the thyroid gland is about 30 gram, or we can say that 20 to 25 gram, that is 1 oz. So it is highly vascularized, as I have already told you, highly vascularized, and receives 80 to 120 ml of blood per minute. And thyroid gland is slightly larger in female and enlarged during puberty, menstruation and pregnancy in female. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले बताया कि दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब. ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर कोन टाइप होता है. और अगर हम उसकी लेंथ की बात करेंगे तो दैट हैव ए साइज ऑफ 5 × 3 × 2 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट इज़ द लेंथ, ब्रेथ एंड height, breadth and length, and it is connected by a narrow region which is called that the isthmus, which is about 1.2 × 1.2 centimeter. And I have already told you that the situation कहाँ पे ये situated है. It is situated anteriorly in the visceral compartment of the neck at the level of C5, that is the cephalic 5 and thoracic 1 vertebrae. So you can see here the C5, that is the cephalic part, and you can see the thoracic first part. Here starts the here present the thyroid gland just below the larynx. तो अगर हम हिस्टोलॉजी देखेंगे थायराइड ग्लैंड का, सो थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट मेनली ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, वन सेल थिक अराउंड अ सेंट्रल पूल ऑफ कोलाइड टू फॉर्म फॉलिकल्स. तो हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, जब हम थायराइड सेल्स को देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्फेरिकल सेक शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं, जो पूरा होल थायराइड फॉर्म करता है. ठीक है, तो जो ईच फॉलिकल्स है उसमें प्राइमरीली कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ विच एक्सटेंड टू द ल्यूमन, दैट इज द इंटरनल स्पेस ऑफ द फॉलिकल. A basement membrane surrounds each follicle. When the follicular cells are inactive, their shape is low cuboidal to squamous, but under the influence of TSH, they become active in secretion and range from cuboidal to low columnar in shape. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, the follicular cell produce two hormones, that is the thyroxine, which is also called tetraiodothyronine, and T4 or T4. It also produce triiodothyronine, that is T3, which contains 3 atoms of iodine. तो आप इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हैं फॉलिकुलर सेल्स का.
सो दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स के बीच में एक स्पेस रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं, ठीक है। और उन फॉलिकुलर सेल्स के बीच में और कुछ सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलाइड, जो ये कोलाइड है और जो फॉलिकुलर सेल्स है उनके बीच में और एक सेल प्रेजेंट है, दैट इज़ द पैरा फॉलिकुलर सेल्स, या जिसको क्या बोलते हैं सी सेल्स उसको कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ईच थायराइड लोब्यूल है, ठीक है, उसमें कम से कम 20 से 40 फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं एंड इज सप्लाइड बाय ए लोब्यूल आर्टरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये कैपिलरी है, ठीक है। तो एक थायराइड लोब्यूल में कम से कम यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ऐसे 20-30 लोब्यूल प्रेजेंट रहते हैं, सॉरी 20 से 40 फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और उन फॉलिकल्स के लिए एक लोब्यूलर आर्टरी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है जिसके थ्रू जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट होते हैं। तो जो फॉलिकल्स है वो स्पेरिकल शेप है, अराउंड 0.2 to 0.9 मिलीमीटर इन डायामीटर। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जब ये जो ग्लैंड है वो इनएक्टिव होता है तो ये जो सेल्स हैं फॉलिकुलर सेल्स वो क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राउंड दिख रहे हैं, फिर भी पहले वो क्या होता है, फ्लैटेंड होते हैं। जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा फिर वो आप फ्लैटेंड से क्यूबॉइडल टू लो कोलुमिनर शेप में हो जाएंगे, ठीक है। जब TSH रिलीज होगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से तब इनका जो स्ट्रक्चर है सेल का वो चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलाइड पैराफॉलिकुलर सेल, दैट इज़ द सी सेल। तो जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव फॉर्म में, जो यहाँ पे दो आपको कंपैरिजन दिख रहा है, तो इनएक्टिव फॉर्म में इनका शेप थोड़ा सा फ्लैटन टाइप है। जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे, देखो यहाँ पे कोलाइड का भी शेप चेंज हो गया और यहाँ पे जो सेल्स है उनका भी शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो वो अब थोड़ा सा क्यूबॉइडल टू लो कोलुमिनर शेप में इनका ट्रांजिशन हो गया। सो अगर हम फिजियोलॉजी देखेंगे थायराइड का, सो थायराइड जो फॉलिकल्स हैं जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे, दैट सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स, दैट इज़ T3 एंड T4। T3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायोनिन बोलते हैं, और T4 को हम बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन भी बोलते हैं, या T4 भी उसको बोलते हैं, ठीक है। सो its synthesis involve combination of iodine with tyrosine group to form mono and diiodotyrosine which are coupled to form T3 and T4, ठीक है। तो जब सिंथेसिस होता है थायराइड हार्मोन का तो हमें आयोडीन चाहिए और हमें जो अमीनो एसिड है दैट इज़ द टायरोसिन वो चाहिए। जब एक आयोडीन टायरोसिन पे लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनो आयोडोटायरोसिन बोलते हैं। जब दो टायरोसिन पे जब 2 आयोडीन लगता है तो हम क्या बोलते हैं, डाई आयोडोटायरोसिन बोलते हैं। और जब 2 डाई आयोडो और 2 डायोडो जब ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं, कंडेंस होते हैं तो टेट्रा आयोडो फॉर्म होते हैं। और एक डायोडो पे एक मोनो आयोडोटायरोसिन ऐड होता है तो वो T3 दैट इज़ द ट्राई आयोडोथायरोनिन फॉर्म होता है, ठीक है, थायरोक्सिन फॉर्म होता है। सो जो हॉर्मोन्स है वो मेनली स्टोर्ड होता है कहाँ पे, इन फॉलिकल्स बाउंड टू थायरोग्लोबिन। जो थायरोग्लोबिन जो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, वहाँ पे ये जो हार्मोन्स है वो बाइंड होके मेनली जो फॉलिकल सेल्स है वहाँ पे स्टोर रहते हैं। सो जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं ब्लड में, दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट रिमेन फ्री इन द प्लाज्मा, ठीक है। जब वो ब्लड में एंटर हो जाते हैं, जब ब्लड में रिलीज होते हैं तो कुछ जो प्रोटीन है, ये जो थायरोक्सिन है T3 और T4 वो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, जैसे कि अल्बुमिन है, तो उनके साथ बाइंड होके वो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। और कुछ फ्री ही वहाँ पे रहते हैं, जो मैक्सिमम है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, और कुछ अमाउंट ऑफ जो थायरोक्सिन है दैट इज़ T3 एंड T4 वो फ्रीली प्लाज्मा में मूव करते हैं, ठीक है। देन जो मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है कि इसका थायराइड हार्मोन का, इट इज़ ड्यू टू द फ्री अनबाउंड T3 एंड T4। जब ब्लड में वो जाते हैं, ठीक है, तो मेनली वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो उसमें जो थोड़ा अमाउंट है वो जाके सेल पे एक्ट करता है। तो जब ज़रूरत होती है हमको T3 और T4 की, तो उस टाइम पे जो प्लाज्मा बाउंड
T3 या जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड T3 और T4 है वो उस प्लाज्मा प्रोटीन से अलग हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं और हमारे सेल पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड रहेंगे तो एक्शन शो नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो उन प्लाज्मा प्रोटीन से अलग हो जाते हैं और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अपना एक्शन शो करते हैं। So 90% ऑफ द सिक्रेटेड हार्मोन इज T4 बट T3 इज़ द एक्टिव हार्मोन। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है जो हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से वो T4 है, बट उसकी एक्टिविटी या उसका जो एक्शन है इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो ये T3 है वो कम अमाउंट में रिलीज होता है बट दैट इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू T4, ठीक है। सो ब्लड में भी जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट होता है बाय एंजाइम दैट इज द डी आयोनिडेज। तो कैसे थायराइड ग्लैंड का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस में, वहाँ से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। देन वो एक्ट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्ट करने के बाद जो थायरोट्रॉप्स है वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कराता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देन हमारे थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से T4 और T3 का रिलीज़ कराते हैं, ठीक है। तो जब थायराइड T4 T3 का जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड में तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पे एक्ट करता है और हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को वो कर देता है, क्या बोलते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सोमेटोस्टेटिन है वो भी नेगेटिवली एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, डोपामिन है वो भी नेगेटिवली एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और जो अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है वो पॉजिटिवली एक्ट करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और TSH का रिलीज़ कराता है। और यही T4 और T3 एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी एक्ट करके TSH का रिलीज़ रोकता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ ना हो, ठीक है। और अगर आयोडीन की भी कमी होगी तो थायराइड हार्मोन्स या थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स फॉर्म नहीं होंगे और वो रिलीज़ नहीं होगा। देन थायराइड हार्मोन कैसे सिंथेसाइज होता है और कैसे रिलीज होता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस है वन बाय वन। तो सबसे पहले थायरोग्लोबिन सिंथेसिस होता है, दैट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन, पहले उसका सिंथेसिस होता है मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉलिकुलर सेल्स के। देन आयोडीन ट्रैपिंग, ठीक है, फिर आयोडीन एंटर होता है फॉलिकुलर सेल्स में। देन आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज स्टेट में आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव रहता है और थायरोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है। देन आयोडीनेशन होता है, फिर जो टायरोसिन है थायरोग्लोबिन पे, उस टायरोसिन पे आयोडीन ऐड हो जाता है। देन कपलिंग, फिर उसके बाद वहाँ पे मोनो, डाई, ट्राई, ये सब फॉर्म होता है। देन स्टोरेज, देन रिलीज़। तो हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो थायरोग्लोबिन सिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, थायरोग्लोबिन सिंथेसिस ऑकर्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस इन द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो हमने पहले फॉलिकुलर सेल्स देखे थे वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस में हमारा थायरोग्लोबिन फॉर्म होता है। थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज ए लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन कंटेनिंग 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। तो 140 अमीनो एसिड इसमें किसके रहते हैं, टायरोसिन के रहते हैं, मीन 100 से अबो ही रहते हैं वहाँ पे टायरोसिन मॉलिक्यूल। जब सिंथेसाइज हो जाएगा थायरोग्लोबिन, दिस थायरोग्लोबिन इज स्टोर्ड इन द फॉलिकल। तो थायरोग्लोबिन यहाँ पे फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ द आयोडीन ट्रैपिंग, ठीक है। आयोडाइड इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फॉलिकुलर सेल्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। द प्रोसेस इज कॉल्ड आयोडाइड ट्रैपिंग। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दिस इज़ द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स में अब यहाँ पे देखो दिस इज़ द न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी एपरेटस भी यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है, दैट इज़ द थायरोग्लोबिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थायरोग्लोबिन में देखो ये जो आपको दिख रहा है डब्बे डब्बे जैसे, दीज आर द टायरोसिन मॉलिक्यूल अटैच ऑन द थायरोग्लोबिन या प्रेजेंट इन द थायरोग्लोबिन प्रोटीन। तो ऐसे टायरोसिन रेजिड्यूज कम से कम 100 से अबो, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 140 टायरोसिन रेजिड्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 4 दिखाए हैं, 1 2 3 4। तो ऐसे इस प्रोटीन पे कम से कम 140 टायरोसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा था आयोडाइड ट्रैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, सेकंड जो हमारा वो है आयोडाइड ट्रैपिंग। तो यहाँ पे आयोडीन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आया, तो वहाँ पे कुछ सिम्पोर्टर्स रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर्स, ठीक है। सिम्पोर्टर्स वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो एक मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमेशा सिम्पोर्टर के लिए दो मॉलिक्यूल्स होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सोडियम जो दूसरा मॉलिक्यूल है, जब तक सोडियम वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तब तक आयोडाइड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो सोडियम भी एब्जॉर्ब इम्पॉर्टेंट है और आयोडीन भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो जब आयोडीन और सोडियम दोनों प्रेजेंट होगा तो दो मॉलिक्यूल सोडियम के और एक मॉलिक्यूल आयोडाइड का क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा थ्रू द इन सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर इन टू द फॉलिकल सेल्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। देन अब इसमें देखो, तो iodide is transported into follicular cells along with sodium by sodium iodide symporter, which is also called iodide pump, whereby two sodium ions are transported for each iodide ion। तो दो सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं अंदर और एक आयोडाइड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आयोडाइड आयन क्या होता है, उसके दो सोडियम के साथ अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। So the accumulated iodide in the follicular cells is then transferred to the apical plasma membrane down an electrochemical gradient। So जो ये फॉलिकुलर सेल्स में जो आयोडाइड एक्यूमुलेट हुआ है, तो वो अब ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, डाउन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सो टीएसएच स्टिमुलेशन इंक्रीज एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एटीपीएस एक्टिविटी एट द एपेक्स ऑफ सेल, इंक्रीजिंग द इफ्लक्स ऑफ आयोडाइड इनटू द कोलाइड डाउन अ फर्दर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आयोडाइड यहाँ पे एंटर हुआ, उसके बाद ये आयोडाइड फिर कहाँ पे जाएगा, हमारे कोलाइड में जाएंगे, तो थ्रू अ ट्रांसपोर्टर दैट इज कॉल्ड पेंड्रिन, ओके। तो पेंड्रिन के थ्रू ये जो आयोडाइड है वो मूव करता है कहाँ पे, कोलाइड में। सो आयोडाइड अवेलेबल through certain foods, example seafood, bread, dairy products, iodized salt, dietary supplement etc। जो हमारे ब्लड में जो आयोडाइड आता कहाँ से हमें पता है, हम खाना खाते हैं उसके थ्रू, जैसे कि सी फूड्स हैं, ब्रेड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या जो हम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, टाटा नमक, तो उनके थ्रू ये जो आयोडाइड है हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। इधर इंटेस्टाइन के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड में ये पहुंच जाते हैं। देन ब्लड से अभी हमने देखा किस तरीके से आयोडाइड ट्रैपिंग होता है। उसके बाद होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, ठीक है। अब ये जो आयोडाइड है वो आई नेगेटिव रहता है, वहाँ पे जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, अब वो वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ताकि जो ये आयोडाइड है वो क्या रहता है, वो लेस रिएक्टिव रहता है। जब हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा उन्होंने, आयोडाइड मस्ट बी ऑक्सीडाइज टू एलिमेंट्री आयोडीन बिकॉज मेनी आयोडीन इज कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद टायरोसिन टू फॉर्म थायराइड हार्मोन। तो आयोडाइड का कन्वर्शन आयोडीन में होना इंपॉर्टेंट है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सो दैट जो आयोडाइड है वो टायरोसिन पे ऐड हो सके, ओके। सो the oxidation of iodide into iodine occurs inside the follicular cells in presence of thyroid per oxidase। तो हम इस डायग्राम में देखेंगे, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आयोडाइड ट्रैपिंग हो गया, आयोडाइड ट्रैपिंग होने के बाद आयोडाइड ट्रैपिंग हो गया, देन आयोडाइड हमारे फॉलिकुलर सेल्स में पहुँच गए। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो आयोडाइड है इसका कन्वर्शन किस में होता है, आयोडीन में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, दैट इज़ द आयोडाइड पर ऑक्सीडेज, ठीक है। देन दिस आयोडीन विल मूव थ्रू द फॉलिकुलर सेल्स इन टू द कोलाइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कोलाइड है वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यहाँ पे मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है। तो कोलाइड में ये जो हमारा आयोडाइड है, जो ऑक्सीडाइज आयोडाइड है, दैट इज़ द आयोडीन, वो कोलाइड में चला जाता है ताकि वो थायरोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो सके। देन चौथा है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो टायरोसिन रेजिड्यू है वहाँ पे
आयोडीन ऐड होता है. सो आयोडीन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स इनटू द फॉलिकुलर कैविटी where it binds with thyroglobin. Then iodine combines with tyrosine, which is already present in the thyroglobin. Tyrosine is oxidized first into monoiodotyrosine and later into diiodotyrosine. तो यहाँ जो ये प्रोसेस था पहला आयोडाइड से आयोडीन फॉर्म होने में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड भी चाहिए और NADPH भी यूज़ होता है. तो अभी हम देखेंगे ये वाला जो रिएक्शन है इसमें. अब देखो हमारा आयोडाइड पहुंच गया कहाँ पे, आयोडीन में कन्वर्ट होके पहुंच गया दैट इज़ द कोलाइड में. और यहाँ से हमारा थायरोग्लोबिन भी पहुंच गया कहाँ पे, इस पर्टिकुलर कोलाइड में. देन उसके बाद क्या होता है रिएक्शन. अब यहाँ पे आयोडीन है, आयोडाइड है और यहाँ पे क्या है हमारा थायरोग्लोबिन है. अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके अब क्या होता है, आयोडाइन टायरोसिन रेजिड्यूज पे बाइंड होता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं. ओके, सो द रिजल्टिंग आयोडीन मॉलिक्यूल आर अटैच टू द टायरोसिल रेजिड्यू ऑफ टायरोग्लोबिन. तो इस टायरोग्लोबिन में जितने भी टायरोसिन रेजिड्यूज है वहाँ पे आयोडीन ऐड होगा. ठीक है, तो मेनली 2 आयोडीन वहाँ पे एक टायरोसिन पे ऐड हो सकते हैं. फिर जब ये टायरोसिन रेजिड्यू एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको टेट्रा आयोडो या ट्राई आयोडो देखने को मिलता है. सो जो हार्मोन है जो इस प्रोसेस को कराता है दैट इज़ द थायराइड पर ऑक्सीडेज TPO यहाँ पे दिखाया हुआ है. थायराइड पर ऑक्सीडेज ये जो रिएक्शन है ये कराता है, दैट इज़ द आयोडीनेशन या ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन. देन अब देखो यहाँ पे ऐड हो गया. फिर ये जो T3 और T4 है, तो यहाँ पे देखो T3, देखो दिस इज़ द T3 और T4. तो यहाँ पे T4 में 4 आयोडीन ऐड होंगे और T3 में आप देख सकते हैं 3 आयोडीन रेजिड्यू ऐड हैं किस पे, टायरोसिन पे. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया है, जो टायरोसिन है वो अलग होके यहाँ पे ऐड हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बट उन 2 टायरोसिन पे क्या है, 1 2 3 आयोडीन प्रेजेंट है. और अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में 3 है. ओके, सो देन दिस T4 एंड T3 जब हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे फिर एंडोसाइटोसिस के थ्रू वो फिर से कहाँ चला जाएगा, इन द लाइसोसोम, वो फॉलिकल सेल्स में एंटर हो जाएंगे. देन फॉलिकल सेल्स में क्या होंगे, उस थायरोग्लोबिन से ये T3 और T4 अलग हो जाएंगे. अब देखो यहाँ पे अब T3 में क्या है, 2 टायरोसिन है, T3 में भी क्या है 2 आयोडीन 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बट वहाँ पे T4 में 4 आयोडीन है, 1 2 3 और 4. और अगर हम T3 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 आयोडीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. और जो थायरोग्लोबिन है वो फिर से रिसाइकल हो जाता है या रिसाइकल हो जाएगा यहाँ पे, या तो यहाँ से न्यू थायरोक्सिन फॉर्म होगा या यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, प्रोटियोलिसिस हो जाता है. जो लाइसोसोमल एंजाइम से वो इसको डिग्रेड कर देते हैं किसको, थायरोग्लोबिन को, और सिर्फ यहाँ पे हमारा हार्मोन बचता है दैट इज़ द थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायोनिन. देन उसके बाद ये जो थायरोसिन और टायरोसिन है दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड थ्रू ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, इस थायरोसिन और T3 और T4 को ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं जब उसकी ज़रूरत होगी. जब ये जो हमारा TSH है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जब TSH रिलीज़ होगा तभी ये जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ होंगे. तब अगर रिलीज़ नहीं होंगे तो तब तक ये यहाँ पे स्टोर रहेंगे, फॉर्म हो सिंथेसिस हो जाएगा उनका बट वो यहाँ पे स्टोर रहेंगे. जब ज़रूरत पड़ेगी तभी वो ब्लड में रिलीज़ होगा. देन कपलिंग रिएक्शन है जो मैंने आपको भी बताया कैसे कपलिंग होता है. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाईआयोडोथायोनिन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ MIT कंबाइन टू फॉर्म ट्राईआयोडो, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ MIT एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ DIT कंबाइन टू प्रोड्यूस अनदर फॉर्म ऑफ T3 कॉल्ड रिवर्स T3 और RT3. रिवर्स T3 इज ओनली 1% ऑफ द थायराइड आउटपुट. ठीक है, ये जो रिवर्स T3 है वो क्या रहता है, वो मेनली
इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, T3 का इनएक्टिव फॉर्म है, तो ये कोई एक्शन नहीं दिखाता है। बट ये भी फॉर्म होता है किसमें, हमारे कोलाइट में, बट ये बहुत ही कम क्वांटिटी में फॉर्म होता है, दैट इज़ अबाउट 1%। ओके, उसके बाद जब दो DIT दैट इज़ द डाई आयोडोथायनिन जब कंबाइन होते हैं तो हमारा T4 फॉर्म होता है, दैट इज़ DIT प्लस DIT इक्वल टू टेट्रा आयोडोथायनिन और थायरोक्सिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉर्मल सीरम लेवल्स हैं थायराइड हार्मोन्स का, दैट इज़ 0.3 टू 4.0 म्यूल पर लीटर, ठीक है। या T4 का देखो, ये TSH की बात कर रहे हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। तो जो अगर हम नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 0.3 टू 4.0 म्यूल पर लीटर रहता है। अगर हम T4 की बात करते हैं जो थायराइड हार्मोन से रिलीज़ होता है, दैट इज़ द 4 टू 11 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज़ 160 टू 140 नैनोमीटर। और अगर हम फ्री T4 की बात करेंगे तो हमने कहा था T4 दो रहता है, एक फ्री फॉर्म में और एक प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फॉर्म में, ठीक है। तो जो फ्री फॉर्म है दैट इज़ 0.7 टू 2.1 माइक्रोग्राम पर DL रहता है, ठीक है, नैनोग्राम पर DL रहता है। और अगर हम T3 की बात करेंगे तो 75 टू 175 नैनोग्राम पर DL रहता है, ठीक है। और अगर हम फ्री T3 की बात करेंगे तो इट इज़ अबाउट 0.2 टू 0.5 नैनोग्राम पर DL। तो और एक सेल देखा था हमने थायराइड ग्लैंड्स में, दैट इज़ द पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज़ करता है विच इज़ कॉल्ड थायराइड कैल्सिटोनिन, जिसको कहते हैं, ठीक है। सो जो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पैराफॉलिकुलर सेल, जिसको C सेल भी कहा जाता है। तो आप डायग्राम में एक बार देख लेना, तो वहाँ पे C सेल्स है, वो C सेल्स क्या रिलीज़ करता है, दैट इज़ द कैल्सिटोनिन। सो अगर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट्स ए 32 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड एंड द होल मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो मेनली ये जो कैल्सिटोनिन है, इसका एक हाफ लाइफ होता है, दैट इज़ अबाउट 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट्स हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो जो कैल्सिटोनिन है इसका मेनली ये जो कैल्सिटोनिन है, आपको नाम से पता चल रहा है, तो मेनली ये जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करता है, जो प्लाज्मा में जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करता है। तो ये 3 तरीक़ों से मेनली जो प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो एक है, पहले जो आयनाइज्ड कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन रोकता है, कहाँ से है, इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। जब हमारे बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। उसके बाद जो कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल्स में या किडनी में, तो वो भी रुक जाता है, या ये जो कैल्सिटोनिन है वो रोक देता है। और तीसरा जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है, दैट इज़ द बोन से जो कैल्शियम रिलीज़ होता है, तो वो जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी वो भी रुक जाता है, ठीक है। और कैल्शियम रिलीज़ नहीं हो पाते हैं बोन से, और जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो मेनली जो कैल्सिटोनिन है, इट इज़ रिलीज्ड या इट्स सिक्रीशन इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द हाइपरक्लेशिमिया, ठीक है। तो हाइपरक्लेशिमिया मीन जब आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है, उस टाइम पे ये जो कैल्सिटोनिन है उसका सिक्रीशन होता है, और ये जो कैल्सिटोनिन है वो कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब देखते हैं हम थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो थायराइड हार्मोन का फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उस पर इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है। सो जो ट्राई आयोडोथायरोनिन है T3 एंड जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है दैट इज़ अ T4, इन दोनों का आलमोस्ट सेम फंक्शन रहता है। बट जो T3 है इट्स मोर इफेक्टिव देन थायरोक्सिन, बट थायरोक्सिन कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ थायराइड सिक्रेशन। तो हाई अमाउंट में सिक्रीट T4 होता है, बट ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, दैट इज़ द T3। तो जो थायराइड हार्मोन है डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट पे, रिप्रोडक्शन पे, बिहेवियर में, मेटाबॉलिज्म में। तो इन सारी चीज़ों पे ये जो थायराइड ग्लैंड है अपना एक्शन शो करता है। तो मेनली जो ये थायराइड ग्लैंड है, इट एक्सर्ट्स इफेक्ट्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। सो द इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, या सेल ग्रोथ होगा, सेल प्रोलिफरेशन होगा, ऑस्टियोब्लास्ट होगा, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगे।
ड्यू टू दिस थायराइड हार्मोन। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट पे इसका क्या इफेक्ट है। सो थायराइड हार्मोन स्पेसिफिकली जो T3 है, इट रेगुलेट ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो T3 इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट है, या हम ऐसा बोल सकते हैं। तो it influences the rate of energy production by enhancing energy releasing oxidative activities. So इस इफेक्ट को हम कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी बोलते हैं. So each 1 milligram of thyroxine raise BMR to about 1000 कैलोरीज ऑफ हीट. ठीक है, तो 1 मिलीग्राम ऑफ थायरोक्सिन क्या करता है, जो BMR है उसको इंक्रीज कर देता है. अबाउट 1000 कैलोरीज ऑफ हीट वहाँ पे हमको देखने को मिलता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीजेनिक इफेक्ट बोलते हैं. सो T3 इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय मोस्ट पेरिफेरल टिश्यू, इंक्रीज बॉडी हीट प्रोडक्शन. देन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इसका इफेक्ट है. तो थायरोक्सिन स्टिमुलेट्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो मेनली ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कराता है, या जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से वो इंक्रीज़ कराता है, या जो सेल्स में ग्लूकोज अपटेक होता है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू दिस थायरोक्सिन. तो थायरोक्सिन नॉर्मली क्या करता है, जो सेल से वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर दैट इज़ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दैट इज़ ग्लूट, तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर का वहाँ पे रिक्रूटमेंट करता है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, सेल्स के अंदर. सो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. तो ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है, दैट इज़ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में, और साथ में एक्सेलरेट ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, साथ में जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, तो वो भी इंक्रीज़ कराता है कौन, ये थायरोक्सिन. तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे थायरोक्सिन का इफेक्ट. देन फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इसका इफेक्ट है. थायरोक्सिन डिक्रीजेस द फैट स्टोरेज बाय मोबिलाइजिंग इट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड फैट डिपोट्स. ठीक है, तो अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है तो वो जो लोग होते हैं, वो जो पेशेंट होते हैं, वो एक्सेस उनमें आपको फैट देखने को मिलता है, वो ज़्यादा मोटे देखने को आपको मिलते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो थायरोक्सिन है वो फैट स्टोरेज को कम कर देता है. जब थायरोक्सिन नहीं होगा तो वहाँ पे फैट स्टोरेज इंक्रीज़ हो जाएगा. सो हम ऐसा बोल सकते हैं, थायरोक्सिन इंक्रीज इज सिंथेसिस एज वेल एज कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स बाय इनहेंसिंग लाइपोलिटिक रिस्पॉन्सेज ऑफ एडिपोज टिश्यू. तो एडिपोज टिश्यू में जो लिपिड ब्रेकडाउन जो रिएक्शन है वो इंक्रीज कराता है कौन, ये थायरोक्सिन. सो दस थायरोक्सिन इंक्रीज इज द फ्री फैटी एसिड लेवल इन ब्लड. तो ब्लड में फ्री जो फैटी एसिड इनका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. और आपको पता है जब फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होता है. तो मेनली इनडायरेक्टली ये मेटाबॉलिज्म पे भी जो आपका BMR है वो भी इंक्रीज़ करेगा. देन अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है. सो दिस थायराइड हार्मोन इज एनाबॉलिक. ठीक है, ये मेनली प्रोटीन सिंथेसिस कराता है. सो विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट इन इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो इतना ज़्यादा भी नहीं करता है, बट इसका एक लिमिट रहता है, तब तक वो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, RNA सिंथेसिस कराता है. ठीक है, विच प्रीसीड्स इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, जिससे क्या होता है और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है. सो एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड नाइट्रोजन इम्बैलेंस. अगर थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है या एक्सेस थायरोक्सिन हमारे बॉडी में हो जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और नाइट्रोजन इम्बैलेंस देखने को मिलता है. अब उसके बाद हम देखेंगे एक्शन ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो थायराइड हार्मोन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट. ठीक है, एसेंशियल फॉर चाइल्डहुड ग्रोथ. फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्जिनाइटल जिसमें हाइपोथायराइडिज्म होगा या जो मतलब थायराइड की कमी होगी, तो उन बच्चों में क्या होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट इन मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है. वहाँ पे प्रॉपरली बच्चे डेवलप नहीं हो पाते हैं और उनका जो मेंटल है वो मेंटली भी क्या होता है, रिटार्डेड होते हैं. मतलब उनका जो ब्रेन है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है और मेंटली वो रिटार्डेड हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थायरोक्सिन का रोल है. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इनका भी रोल है, दैट इज थायराइड हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और CNS as it increase nerve growth factor level which controls dendritogenesis and axonal regeneration. ठीक है, तो मेनली जो थायरोक्सिन है ये क्या करता है, एक फैक्टर है
एक ग्रोथ फैक्टर है उसको इंक्रीज करते हैं, जिसका नाम है NGF, दैट इज़ द नर्व ग्रोथ फैक्टर। जिससे क्या होता है, जिससे डेंड्राइटोजेनेसिस दैट इज़ डेंड्राइट फॉर्म होता है, और जो एक्सोन है उनका रीजनरेशन होता है, ठीक है। दैट इज़ मीन्स आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम होगा तो इससे क्या होता है, इट कॉजेज द अल्टरेशन इन द कॉग्निटिव फंक्शन, दैट इज पेशेंट विथ हाइपोथायराइडिज्म में डेवलप इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन, स्लाउट मोटर फंक्शन एंड पुअर मेमोरी ऑल्सो। अगर हम थायराइड की कमी हो गई किसी पेशेंट में तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। एम्पायरमेंट ऑफ अटेंशन, वो प्रॉपर्ली अटेंटिव नहीं रहता है, और उनका जो मोटर फंक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है, वो स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं, और उनकी जो मेमोरी बहुत वीक रहती है। तो बट इनको हम चेंज कर सकते हैं बाय थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिससे ये सारी चीज़ें फिर से ट्रीट हो सकता है। देन बोन ग्रोथ में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। T3 ऑल्सो में पार्टिसिपेट इन ऑस्टियोब्लास्ट डिफ्रेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन एंड कॉन्ड्रोसाइट मेचुरेशन लीडिंग टू बोन ऑसिफिकेशन, ठीक है। तो बोन ऑसिफिकेशन में भी इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, या बोन डेवलपमेंट में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये ऑस्टियोब्लास्ट करता है, ठीक है, दैट इज़ बोन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और बोन सेल्स में डिफ्रेंशिएशन होता है, उनका प्रोलिफरेशन होता है, जिससे बोन का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और साथ साथ में जो कॉन्ड्रोसाइट्स है उनका भी मेचुरेशन होता है, लीडिंग टू बोन ऑसिफिकेशन, ठीक है। तो बोन का साइज इंक्रीज भी होता है और उनका वेट भी बढ़ता है ड्यू टू दिस T3 हार्मोन। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इसका क्या रोल है, तो नॉर्मल थायराइड हार्मोन फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है, मिसकैरेज देखने को मिलता है फीमेल्स में, एंड मेनली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है अगर थायराइड हार्मोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा या हाइपोथायराइडिज्म उस फीमेल में है। ओके, सो रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। तो इट इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, थायरोक्सिन इंक्रीजेज रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो जो O2 यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज़ कर देता है थायरोक्सिन, ठीक है। देन जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी रेस होता है इसी थायरोक्सिन से, ओके। बॉडी वेट भी इस थायरोक्सिन से इंक्रीज़ होता है। सो इट इंक्रीज प्रोडक्शन लीड्स टू वेट लॉस एंड डिक्रीज अमाउंट लीड्स टू ओबिसिटी, ठीक है। तो प्रोटीन ज़्यादा फॉर्म होगा तो उसका वेट जो है वो बढ़ता है। अगर थायरोक्सिन नहीं होगा तो प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है और फैट्स का लेवल बढ़ जाता है, और उस पर्टिकुलर ह्यूमन में जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है और उसका वेट और ज़्यादा लगता है, ठीक है। बट अगर नॉर्मल थायरोक्सिन प्रेजेंट होगा तो उसका वेट तो बढ़ेगा बट फैट परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा, इतना मोटा दिखेगा नहीं, वो नॉर्मल जो एथलीट्स दिखते हैं वैसे दिखेंगे, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द थायराइड हार्मोन इन बॉडी वेट। देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका क्या एक्शन है, जनरली थायरोक्सिन इंक्रीज इज द एपिटाइट एंड फूड इंटेक, ठीक है। थायरोक्सिन क्या करता है, आपकी भूख को इंक्रीज़ करता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है अगर थायरोक्सिन नॉर्मल प्रेजेंट होगा तो, जिससे आप ज़्यादा खाना खाओगे। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द सिक्रीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ GI ट्रैक्ट। तो साथ साथ में जो आपके GI ट्रैक्स में जो मूवमेंट्स रहते हैं या जो भी GI ट्रैक्स में जो भी सिक्रीशंस रहते हैं तो ये भी वो इंक्रीज़ करता है थायरोक्सिन, जैसे कि HCl सिक्रीशन है या जो भी जूसेस प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में ड्यूरिंग द GI ट्रैक्ट, इन द GI ट्रैक्ट, तो वो सब उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। सो अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया कि इसका थायरोक्सिन का, तो उससे डायरिया हो सकता है। लेक ऑफ थायरोक्सिन कॉज कॉन्स्टिपेशन, अगर थायरोक्सिन कम हो गया तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो वहाँ पे डायरिया आपको देखने को मिलेगा। देन हार्ट पे क्या एक्शन है, इट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जितना हो सके जो हार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज होगा। एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, स्टिमुलेट हाई लाइपोलिसिस मीन्स लिपिड्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिससे ब्लड का फ्री फैटी एसिड लेवल क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। मसल्स पे क्या होता है, इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, अगर ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज़ हुआ तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, अगर नॉर्मल लेवल में थायरोक्सिन रिलीज़ होगा तो प्रोटीन वहाँ पे फॉर्म होगा या प्रोटीन सिंथेसिस होगा। So this is all about the function of thyroid hormone on
जनरल मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, बॉडी वेट, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सारे फंक्शन करता है कौन, हमारा थायराइड हार्मोन, दैट इज़ द T3 एंड T4। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे कि अगर थायराइड हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हुआ या हाइपर सिक्रीशन हुआ तो क्या हो सकता है। तो उससे पहले मैं और एक आपको इम्पॉर्टेंट थायराइड हार्मोन का बताना चाहता हूँ। तो थायरोक्सिन इज़ एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन टेडपोल्स। ठीक है, तो टेडपोल से एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए थायरोक्सिन चाहिए। ठीक है, जब थायरोक्सिन होगा तो वहाँ पे लिम्फ फॉर्मेशन होता है उसमें टेडपोल्स में, और जो टेल है उसका डीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस बोलते हैं या नियोटीनी बोलते हैं। सो मेनली मेटामॉर्फोसिस होता है एम्फीबियंस में। जो लार्वा है वो अब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा टेडपोल में टेल रहते हैं, उसमें लिम्स नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही थायरोक्सिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो टेल डीजनरेट हो जाता है और वहाँ पे लिम्फ फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्रॉग में आपको टेल देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको फोर लिम्ब हिंड लिम्स देखने को मिलते हैं। बट टेडपोल में आपको लिम्स देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको टेल देखने को मिलता है। तो टेडपोल का जो टेल डीजनरेशन होता है वो थायरोक्सिन की वजह से होता है, और टेडपोल में लिम्ब फॉर्मेशन भी इसी थायरोक्सिन की वजह से होता है। और जो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है उसमें ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, और मेनली मॉल्टिंग और स्लफिंग ऑफ इंटीग्यूमेंट में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ओके, तो मिनरल मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको पहले बताया जो कैल्सीटोनिन रिलीज होता है वो थायरोकैल्सीटोनिन है, वो मेनली मिनरल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, दैट इज़ द कैल्शियम लेवल को वो डिक्रीज कर देता है। तो अगर हम डिसऑर्डर देखेंगे किसके, इस थायराइड हार्मोन के, तो जनरल आपको बता दूंगा थायराइड हार्मोन का जो डिसऑर्डर है। तो अगर जो ये थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो क्या होगा, और अगर कम रिलीज़ हुआ तो क्या हो सकता है। तो जो थायराइड डिसऑर्डर है मेनली इनको दो उसमें क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज़ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, और दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज़ अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन्स एक्सेस में प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, और जब थायराइड हार्मोन्स लो लेवल में प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म, जो मेनली ग्लैंड डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स है उसमें ग्वाइटर आता है, ग्रेव डिजीज़ आता है, क्रिटिनिज्म आता है, मैक्सिडिमा आता है, हाशिमोटो डिजीज़ आता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ग्वाइटर। तो ग्वाइटर में क्या होता है, इट्स अ स्वेलिंग ऑफ द नेक। ठीक है, तो यहाँ पे नेक के नीचे स्वेलिंग हो जाता है या लेरिंग्स का, रिजल्टिंग फ्रॉम द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसको थायराइड थायरोमेगाली भी कहा जाता है। तो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से जो नेक है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। सो जो मेनली 90% जो ग्वाइटर के केसेस है वो वर्ल्ड वाइड में हम देखेंगे तो वो होता है क्यों, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, ड्यू टू द आयोडीन डिफिशियंसी द ग्वाइटर विल develops in 90% of the cases worldwide. Okay, so it may be associated with both hypothyroidism and hyperthyroidism. तो hypothyroidism में भी ग्वाइटर हो सकता है और hyperthyroidism में भी ग्वाइटर हो सकता है। तो साइंस और सिम्टम्स क्या है, अगर हम हाइपर थायराइडिज्म में ग्वाइटर को देखेंगे, ठीक है, या वो ग्वाइटर जो हाइपर थायराइडिज्म की वजह से हुआ है, तो उसमें साइंस ऑफ सिम्टम्स क्या है, दैट इज टेकीकार्डिया, दैट इज़ जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट होने लगता है। ये जो पाल्पिशन मीन्स हार्ट में इरेगुलर बीटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नर्वसनेस, आप बहुत नर्वस फील करोगे, ट्रेमर्स, आपके हाथ पैर सब कांपेंगे, शेक करेंगे, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और हीट इनटॉलरेंस वहाँ पे देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर पेशेंट में। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स है किसके, ग्वाइटर के, किस में, हाइपरथायराइडिज्म में। और हाइपोथायराइडिज्म में ग्वाइटर हुआ तो उस उनमें क्या होता है, डेट इज़ वेट गेन डिस्पाइट पुअर एपिटाइट। हाँ, जितना कम खाना, मतलब खाना खाने का मन नहीं करेगा, बट उस पर्सन में उसका वेट क्या हो जाएगा, उसका वेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेशन मीन्स उसको बहुत ही जल्दी सर्दी लगेगी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी,
उस इंसान में देखने को मिलेगा। लेथर्जी, बहुत ही लेथर्जिक हो जाएगा, बहुत ही सुस्त हो जाएगा, ठीक है। बट दीज सिम्टम्स आर नॉट ऑफन स्पेसिफिक एंड मेक्स डायग्नोसिस डिफिकल्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स दिखे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, बट किसी किसी में ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। तो हम डायग्नोसिस सिम्टम्स से डायग्नोसिस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे टेस्ट करना पड़ता है कि क्या रीज़न है, क्या हुआ है। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं गोइटर का, दैट इज़ ऑन द ग्रोथ पैटर्न, दैट इज़ यूनि नोडुलर, ठीक है, जिसमें एक नोड्यूल होता है, मल्टी नोडुलर जिसमें एक से ज़्यादा नोड्यूल्स होते हैं, और एक डिफ्यूज जिसमें नोड्यूल क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज रहते हैं, ठीक है। साइज़ के बेसिस पे हम क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 उसको डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट गोइटर है, ठीक है। दैट क्लास 1, यहाँ पे दिस इज़ द क्लास 1, ठीक है। तो ये क्लास 3 है, ठीक है, ये भी क्लास 3 है, ये क्लास 2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली गोइटर, दैट इज स्वेलिंग ऑफ द नेक। तो अब कॉजेस किस वजह से गोइटर होता है। सबसे पहले आयोडीन डिफिशिएंसी। जब आयोडीन डिफिशिएंसी होगी तो क्या होता है, थायरोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है हमारे थायराइड ग्लैंड्स में। तो बट आयोडीन की कमी की वजह से आयोडीन उस थायरोग्लोबिन पे ऐड नहीं हो पाता है। तो ऐड ना हो पाने की वजह से वो कोलाइट में वो स्टोर होते रहता है, ठीक है। उसके स्टोरेज की वजह से क्या होता है, जो हमारा ग्वाइटर है या जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो एक रीज़न ये है। दूसरा है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। तो किसी किसी में बचपन से ही ये जो डिज़ीज़ है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। उनमें या तो किसी थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं होता है, या तो वहाँ पे कुछ ना कुछ किसी डिफिशियंसी की वजह से वहाँ पे गोइटर देखने को मिलता है। तीसरा है पिट्यूटरी डिजीज़। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं हुआ, अगर पिट्यूटरी में कोई डिफेक्ट होगा तो थायराइड ग्लैंड वहाँ से रिलीज़ नहीं होगा और वहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा और गोइटर वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। देन थायराइड हार्मोन इनसेंसिटिविटी, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन तो प्रोड्यूस हो रहा है बट हमारे सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन इनसेंसिटिविटी। ये कॉजेस है किसके लिए, गोइटर के लिए। तो ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में हम इट इज़ ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द कॉज। इफ थायराइड ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग टू मच T4 एंड T3, रेडियो एक्टिव आयोडीन इज गिवन टू द पेशेंट टू श्रिंक द ग्लैंड। अगर हमारा बॉडी या थायराइड ग्लैंड एक्सेस में T4 और 3 प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, ठीक है, जिससे जो पेशेंट का थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और वहाँ पे गोइटर देखने को नहीं मिलता। अगर आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हुआ है तो हम उसको मेनली लोगल सॉल्यूशन या पोटेशियम सॉल्यूशन हम उसको देते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के जो सॉल्यूशन है वो हम उसको देते हैं। देन उसके बाद है ग्रेव डिजीज़, ठीक है, जिसको टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर भी कहा जाता है। सो ये क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मींस जो हमारी इम्यूनिटी हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, दैट इफेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड। तो ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ये ग्रेव डिजीज़ होता है। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो ये क्या है, सबसे कॉमन कॉज है किसका, हाइपरथायराइडिज्म का। The exact cause of this disease is still unclear. However, it is believed to involve a combination of genetic and environmental factor. तो जो एक्चुअल कॉज है क्यों ये डिजीज़ होता है वो अभी तक अनक्लियर है, बट ऐसा माना जाता है कि कुछ जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ये ग्रेव डिजीज़ डेवलप करने में। तो साइंस ऑफ सिम्टम्स क्या है, सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साइंस ऑफ द डिजीज इज बिलीव टू बी रिजल्ट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। दीज इंक्लूड इंसोमेनिया, नींद नहीं आना, हैंड ट्रेमर्स, हैंड शेक करना, हाइपर एक्टिविटी, ज़्यादा एक्टिव रहना, हीट इंटॉलरेंस, हीट टॉलरेट नहीं कर पाना, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है, वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट, ठीक है, मतलब भूख ज़्यादा लगता है मगर ज़्यादा खाना खाते हैं वो, बट स्टिल उनका वेट नहीं बढ़ता है। तो दिस इज साइन ऑफ ग्रेव डिजीज। सो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज ऑप्थेल्मोपैथी, ग्वाइटर एंड प्री टिबियल मैक्सिडीमा। तो ये कुछ एक्सेप्शन है इस ग्रेव डिजीज़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज़ द जो ग्रेव डिजीज़ है उस वो इस तरह दिखता है, ठीक है। तो किसी किसी में इस टाइप का आप एक्सोप्थेल्मिक आपको ग्वाइटर देखने को मिलेगा, उसकी आंखें से बल्ज बाहर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो बंदा इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेव डिजीज़। देन क्रिटिनिज्म,
तो क्रिटिनिज्म मेनली बच्चों में होता है. सो क्रिटिनिज्म इज ए कंडीशन ऑफ सीवियर stunted physical and mental growth due to untreated congenital deficiency of thyroid hormone usually due to maternal hypothyroidism. ठीक है, तो क्रिटिनिज्म मेनली बच्चों में होता है और इसके जो सिम्टम्स है दैट इज़ स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. तो फिजिकली भी उसकी ग्रोथ रुक जाती है और मेंटली भी उसकी उस बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है. ठीक है, तो मेनली ये जो होता है ड्यू टू क्यों होता है, अनट्रीटेड कंजेनाइटल डिफिशिएंसी. जब बचपन से ही उसमें अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी होगी, ठीक है, या जो मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, तो उसमें ये डिजीज़ क्रिटिनिज्म डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो क्रिटिनिज्म कैन बी एंडेमिक, जेनेटिक और स्पोरेडिक. ठीक है, एंडेमिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, स्पोरेडिक हो सकता है. सो poor growth is apparent as early as the first year of life. It causes mental deterioration, swelling of skin, and loss of hair. Bone maturation and puberty is severely delayed. Ovulation is impeded, and infertility is common. ठीक है, तो ये इसकी कुछ पैथोफिजियोलॉजी है, कुछ सिम्टम्स है. जैसे कि बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिटोरिएशन हो जाता है, उनके स्किन का स्वेलिंग हो जाता है. ठीक है, हेयर लॉस हो जाता है, बोन मैच्योरेशन और प्यूबर्टी वो रुक जाती है. अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो ओव्यूलेशन रुक जाता है और मेनली उनमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है फीमेल्स में. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो दिस इज़ अ केस ऑफ क्रिटिनिज्म जो बच्चों में देखने को मिलता है. सो जो मोस्ट कॉमन कॉज है इस क्रिटिनिज्म का, दैट इज़ द आयोडीन डिफिशियंसी. अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो बच्चों में क्रिटिनिज्म हो सकता है. तो जो पॉपुलेशन है जो मेनली उन जगहों पे रहता है जहाँ पे आयोडीन की बहुत कमी है या लो सोल आयोडीन कंसंट्रेशन है, तो वो लोग इस डिजीज़ के लिए क्या है, बहुत ही प्रॉन है, वल्नरेबल है. ओके, देन तीसरा है दैट इज़ द मैक्सीडीमा. सो मैक्सीडीमा को हम साइनोनिमसली उसको सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं. सो मैक्सीडीमा डेवलप्स इन द पेशेंट विथ ऑलमोस्ट टोटल लैक ऑफ थायराइड हार्मोन फंक्शन. जब थायराइड हार्मोन टोटली उसका फंक्शनिंग नहीं होगा उस पर्टिकुलर पर्सन में, तो उसमें मैक्सीडीमा डेवलप होता है. सो इट इज़ जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय बेगीनेस अंडर द आइज एंड स्वेलिंग ऑफ द फेस. ठीक है, तो आइज़ के नीचे आपको बेगीनेस देखने को मिलेगा और मेनली जो फेज़ है उसका स्वेलिंग देखने को मिलता है. तो इन दिस कंडीशन ग्रेटली इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ हाइलुरोनिक एसिड एंड chondroitin sulfate bound with protein form excessive tissue gel in the interstitial spaces and this cause the total quantity of interstitial fluid to increase. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हाइलुरोनिक एसिड है और दो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, तो वो उनके साथ जो बॉन्ड प्रोटीन है उनका प्रोडक्शन टिश्यू जेल में एक्सेस हो जाता है, जिससे इंटरस्टिशियल स्पेस में उनका क्वांटिटी बढ़ जाता है, जिससे या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे जो स्वेलिंग स्किन की स्वेलिंग वहाँ पे देखने को मिलती है. तो बिकॉज ऑफ द जेल नेचर ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इट इज़ मेनली इमोबाइल एंड द एडिमा इज़ द नॉन पिटिंग टाइप. ठीक है, तो हम कॉज देखेंगे. कॉज क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म एसोसिएटेड विथ pre-tibial maxedema and exophthalmos. Pre-tibial maxedema can occur in 1 to 4% of patient with grave disease, a cause of hyperthyroidism. तो अगर मैक्सीडीमा एक हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है, मेनली मगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है. तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हुआ तो मेनली जो ग्रेव डिजीज़ जिसमें डेवलप हुआ है तो आपको उसमें ये मैक्सीडीमा देखने को मिलता है. और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में की वजह से हुआ है तो ये जो मैक्सीडीमा है वो हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस में डेवलप या कन्वर्ट हो सकता है. तो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे दैट इज़ इट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डर्मल एडिमा. ठीक है, डर्मल एडिमा में जो स्किन का स्वेलिंग हो जाता है इसमें, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इट्स फाइबर्स इज सेपरेटेड बाय एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ म्यूकोसेकेराइड्स. तो जो कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ म्यूकोसेकेराइड्स. ठीक है, देन द दिस प्रोटीन म्यूकोसेकेराइड कम्प्लेक्स बाइंड्स विद वाटर प्रोड्यूसिंग नॉन पिटिंग बॉगी एडिमा. ठीक है, इन पर्टिकुलर अराउंड आइज, हैंड्स एंड फीट. तो वहाँ पे एडिमा डेवलप हो जाता है जो नॉन पिटिंग है. ठीक है, अगर उसको दबाओगे तो वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है. ठीक है, जिससे अंडर आइज स्वेल हो जाते हैं, आपके हाथ स्वेल हो जाते हैं, आपके फीट स्वेल हो जाते हैं.
और मैक्सिडिमा इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ टंग एंड लेरेंजियल एंड फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। जो टंग है उसका थिकनिंग हो जाता है, और जो लेरेंजियल और फेरेंजियल मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी भी थिकनिंग हो जाती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसका स्टोमक स्वेल हुआ है, उसकी आंखें देखो, उसकी आंखें भी स्वेल हुई है, उसका फेस भी स्वेल हुआ है, ठीक है। सो दीज आर सम कॉजेज ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। एक है लास्ट, दैट इज द हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द थायरॉयड ग्लैंड इज ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड। तो जो थायरॉयड ग्लैंड है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है इस डिजीज़ में। सो ओवर टाइम द थायरॉयड में इनलार्ज एंड फॉर्म पेनलेस ग्वाइटर। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो जो थायरॉयड है वो इनलार्ज हो जाएगा, बट वहाँ पे एक पेनलेस ग्वाइटर फॉर्म होगा। सम पीपल इवेंचुअली डेवलप हाइपोथायरॉयडिज्म। तो कुछ लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म भी डेवलप हो सकता है। आफ्टर मेनी ईयर्स द थायरॉयड श्रिंक्स इन साइज। इट इज़ थॉट टू बी कॉज ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो कुछ सालों के बाद ये जो थायरॉयड ग्लैंड है वो श्रिंक हो जाएगा, और वहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो सिम्टम्स क्या है इसके? फैटीग, बहुत थक जाना, वेट गेन करना, और पेल और पफ़ी फेस, ठीक है। फेस का स्वेलिंग होना, बहुत कोल्ड इंटॉलरेंस, बहुत ही कोल्ड फील करना, और जॉइंट और पेन मसल होना, कंस्टिपेशन होना, जो हेयर है हेयर लॉस होना। देन फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होना, और डिप्रेशंस, ये कुछ साइंस और सिम्टम्स है किसके? इस हाशिमोटो डिजीज़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाशिमोटो डिजीज़ का एक यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द disorders due to increase and decrease of thyroid gland, that is hypothyroidism and hyperthyroidism. Thank you.